BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. دنیا بھر کی مختلف حکومتوں کے سربراہان زمین پر درجہ حرارت میں اضافے کو روکنے کے لیے متفقہ حکمت عملی کی کوشش میں فرانس میں جمع ہیں. پوپ فرانسس نے مذہبی کشیدگی کے شکار ملک سینٹرل افریقن ریپبلک میں ایک مسجد کے دورے کے دوران مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان بھائی چارے پر زور دیا. اور ایک اچھی لڑکی کیسی ہوتی ہے؟ ہر معاشرے کا اپنا اپنا پیمانہ ہے. خواتین پر BBC کی 100 ویمن سیریز میں آج ملیے برف سے ڈھکے سائبیریا کی ایک اچھی لڑکی سے. دنیا کے ماحول میں تبدیلیوں پر ایک متفقہ عالمی حکمت عملی بنانے کے لیے سربراہی کانفرنس آج سے فرانس کے دارالحکومت پیرس میں شروع ہو گئی ہے. اقوام متحدہ کی جانب سے منعقد کرائے جانے والی اس کانفرنس میں 195 ممالک کے نمائندے کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے لیے کسی معاہدے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے. اس موقع پر میزبان ملک فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ دنیا کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے. ڈینیل باچو کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں حسین عسکری. پیرس میں دہشت گردی کے واقعات کے بعد سیکیورٹی تو پہلے ہی زیادہ تھی اور کلائمیٹ کانفرنس کے موقع پر عالمی رہنماؤں کی آمد کی وجہ سے اسے مزید بڑھا دیا گیا. 150 سے زیادہ عالمی رہنما سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ ماحول اور موسموں میں تیزی سے ہوتی تبدیلیوں کو کیسے روکا جائے. لیکن ایک متفقہ لائحہ عمل ایک بڑا چیلنج ہے. ہم اس معاملے پر گزشتہ کم از کم 20 برس سے بات کر رہے ہیں. اب یہ صحیح وقت ہے کہ ہم انسانیت کے لیے عملی اقدامات کریں. اس موقع پر پیرس سمیت دنیا کے کئی شہروں میں مظاہرے ہوئے تاکہ عالمی رہنماؤں پر دباؤ ڈالا جائے. ہدف یہ ہے کہ کاربن کے اخراج کو اس حد تک کم کیا جائے کہ صنعتی انقلاب سے پہلے عالمی سطح پر جو درجہ حرارت تھا اس سے 2 ڈگری سے زیادہ اضافہ نہ ہو سکے. کیونکہ سائنسدان سمجھتے ہیں کہ 2 ڈگری سے زیادہ اضافہ دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا. سمندروں کی سطح بڑھ جائے گی، کہیں سیلاب آئیں گے تو کہیں خشک سالی، شدید موسم دنیا کا مقدر بن جائیں گے. ہر ملک نے انفرادی طور پر اپنے اہداف ظاہر کیے ہیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے. کچھ کا موقف ہے کہ 2 ڈگری کا ہدف کافی نہیں ہے اور کچھ طویل مدت کے اہداف پر زور دے رہے ہیں. رقوم کے بارے میں سخت مذاکرات ہوں گے. ترقی پذیر ممالک کا کہنا ہے کہ اگر ان سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ روایتی ایندھن کا استعمال کم کریں تو انہیں صاف اور متبادل توانائی کے لیے مالی مدد درکار ہوگی. ساحلوں پر آباد علاقے سب سے زیادہ خطرے سے دوچار ہیں اور مدد کے منتظر بھی. لیکن یہ فنڈز کہاں سے آئیں گے اور کون دے گا؟ اس سربراہی کانفرنس میں سب سے اہم موضوع یہی ہے. ڈینیل باچو کی رپورٹ. عالمی سطح پر ماحولیاتی تغیر سے پاکستان کے بھی کئی ساحلی علاقے متاثر ہو رہے ہیں. صوبہ سندھ کے ضلع ٹھٹھہ کے علاقے کیٹی بندر اور اس کے آس پاس سمندری پانی قابل کاشت زمینوں کو نگلتا جا رہا ہے اور زیر زمین بھی سمندری پانی کے دباؤ کی وجہ سے میٹھا پانی کھارا ہو گیا ہے. اس صورتحال میں وہاں انسانی آبادی اور چرند پرند کا رہنا دشوار ہوتا جا رہا ہے. کیٹی بندر ٹھٹھہ سے ریاض سہیل کی رپورٹ. ان بچوں کا کھیل اور روزگار یہی ہے. کوئی زمانہ تھا کہ ماہی گیروں کے جال مچھلیوں سے بھرے ہوتے تھے، لیکن سمندر کی خوشحالی اب ان بزرگوں کے قصوں میں ہی رہ گئی ہے. سمندر ایک بار پھر اس آبادی کو پیچھے دھکیل رہا ہے، لیکن ان لوگوں کی سمندر سے لڑائی جاری ہے. حالانکہ 20 سال قبل وہ یہ لڑائی ہار چکے ہیں. جب میں نے ہوش سنبھالا تو سمندر وہ سامنے جو گاؤں نظر آ رہا ہے نا وہاں تک تھا. لوگ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اور سمندر آگے بڑھتا جا رہا ہے. دوسری جگہ کہاں جائیں؟ ان کا روزگار یہاں ہے. موسمی تغیر اور دریائے پانی کی آمد نہ ہونے کی وجہ سے انڈس ڈیلٹا میں واقع ہونے والی تبدیلیاں اس کے ارد گرد سینکڑوں لوگوں کی زندگی کے لیے خطرہ بن رہی ہیں. صدیق دبلو گاؤں میں ہر سال جون جولائی میں سمندر کا پانی گھروں میں داخل ہو جاتا ہے. ماحول کی بقا کے لیے کام کرنے والے ادارے WWF نے نقصان سے بچاؤ کے لیے گھر کا یہ نمونہ پیش کیا ہے. پہلے ہمارے گھر نچلی سطح پر تھے. جیسے پانی آتا تھا ڈوب جاتے تھے. راشن اور دیگر سامان خراب ہو جاتا تھا. WWF والوں نے مدد کی تو ہم نے یہ گھر بنایا ہے جس سے نقصان کم ہوتا ہے. سمندر تیزی کے ساتھ خشکی کو کاٹتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. محکمہ اوشنوگرافی کے مطابق ہر سال سمندر کی سطح میں 1.2 ملی میٹر اضافہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں اس سمیت لاکھوں ایکڑ زمین سمندر برد ہو رہی ہے. زیر زمین سمندر کا نمکین پانی میٹھے پانی کو دھکیلتا اوپر چڑھ رہا ہے.
जिसने सतह ज़मीन का नक्शा ही तब्दील कर दिया है। सिंध हुकूमत के मुताबिक गुज़िश्ता 50 बरसों में 35 लाख एकड़ ज़मीन बंजर हो चुकी है, जबकि पीने का पानी नापेद है। मौसमी तब्दीलियों ने ज़राअत और माहीगीरी से वाबस्ता इन साहिली लोगों की ज़रिया माश को महदूद कर गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया है। इसी वजह से यहाँ पे ग़िज़ाइयत की कमी के मसाइल जन्म ले रहे हैं। यहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी खा रहा है, मीठा पानी पैसों पर लेते हैं। सब्जी वगैरह की काश्त नहीं होती, इस वजह से सब्जी महंगी मिलती है। चारा ना होने की वजह से जानवर पालना मुश्किल है। पाकिस्तान में बाज़ माहिरीन का कहना है कि अगर समंदर की पेशकदमी न रोकी गई तो 2050 तक यह ठट्टा और कराची को भी मुतासिर कर सकता है। ताहम हुकूमत की इस पर कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई। रियाज सोहेल, BBC, केटी बंदर, ठट्टा। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। पोप फ्रांसिस ने सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के दारुल बांगी में एक मस्जिद का दौरा किया है, जहां मुसलमान और ईसाई आबादी में 3 साल से तशद्दुद जारी है। कई मुसलमान इस इलाके से जा चुके हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा कि मुसलमान और ईसाई भाई भाई हैं। तफसील के साथ आरिफ शमी। पोप को देखने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद मकामी स्टेडियम में जमा हुई। उनके लिए पोप का ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल था। चाहे फिर वो कैंपों में बसने वाले बेघर अफराद हों या तशद्दुद में गिरे हुए, उनके लिए ये एक यकीन दहानी थी कि दुनिया उन्हें भूली नहीं है। बोंगी में पोप फ्रांसिस ने अपने दिन का आगाज़ इस इलाके में एक मस्जिद के दौरे से किया, जहां गुज़श्ता 3 बरस से मुसलमानों और ईसाइयों में तशद्दुद जारी है। PK5 नामी इस इलाके में तकरीबन 15,000 मुसलमानों ने इस मस्जिद के गिर्द पनाह ले रखी है। ईसाई मलेशिया ने उन्हें घेर रखा है और उन्हें खौफ है कि अगर उन्होंने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो उन पर हमला हो सकता है। पोप फ्रांसिस ने मुसलमानों से यकजहती का इजहार किया। उनका कहना था कि मुसलमान और ईसाई आपस में भाई भाई हैं। हम सबको इस मुल्क में अमन चाहिए। पोप के दौरे से इस मुल्क में तमाम मज़ाहिब में अमन कायम करने में मदद मिलेगी। पोप के दौरे से अमन के लिए राह हमवार हो सकेगी या नहीं, लेकिन इससे एक मौसर पैगाम ज़रूर पहुंचता है कि ईसाई और मुसलमान अमन से रह सकते हैं और उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। आरिफ शमीम, BBC न्यूज़। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में आलमी माहौलियाती तब्दीलियों पर आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपने इंडियन हम मनसब नरेंद्र मोदी से गैर रस्मी मुलाकात हुई है। पेरिस कॉन्फ्रेंस में दोनों रहनुमाओं के दरमियान रस्मी मुलाकात तय नहीं थी, ताहम इस मुख्तसर मुलाकात को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से मस्बत करार दिया जा रहा है। इसराइल में एक अदालत ने 2 इसराइलियों को एक फ़लस्तीनी नौजवान के कत्ल का मुजरिम करार दिया है। ये वाक़या सन 2014 में ग़र्ब उर्दून में पेश आया था और इस फ़लस्तीनी नौजवान को 3 इसराइली नौजवानों के बदले में कत्ल किया गया था, जिसके बाद तशद्दुद का एक सिलसिला शुरू हो गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि मौसम सरमा के शुरू होते ही नेपाल में ईंधन, खुराक और अद्वियात की कमी से 30 लाख बच्चों की जिंदगियों को खतरा हो सकता है। यूनिसेफ का कहना है कि मुल्क के जनूब में जारी सियासी बेचैनी इस सूरत हाल की जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इंडिया से भी बरामदात का सिलसिला महदूद होकर रह गया है। और इंडिया में अदम रवादारी पर जारी तल्ख बहस की गूंज आज पार्लियामेंट के अंदर भी सुनाई दी। हिज़्ब इख्तिलाफ का इल्ज़ाम था कि बीजेपी अपनी इंतखाबी कामयाबी को मुल्क में 800 साल बाद एक हिंदू हुक्मरान की वापसी के तौर पर देखती है, और बकौल हिज़्ब इख्तिलाफ ये बात खुद वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कही थी। लेकिन इल्ज़ाम तराशी के माहौल में ये बहस अधूरी रह गई। दिल्ली से सोहेल हलीम। अदम रवादारी के खिलाफ एहतजाज पार्लियामान के अंदर भी और बाहर भी। हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस के कारकुन पार्लियामान तक मार्च करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। पार्लियामान के अंदर अदम रवादारी पर पहली बहस। जब चुनाव के बाद मोदी जी सत्ता में आए, भाषण में क्या कहा गया? 800 साल बाद कोई हिंदू फिर से इस देश का शासक बना है। ये लोकतंत्र की दुहाई है, ये सेकुलरिज्म की दुहाई है, ये संविधान की दुहाई है। हिज़्ब इख्तिलाफ का इल्जाम था कि हुकूमत जानबूझकर अपने रहनुमाओं के उन बयानात पर खामोश है जिनसे मजहबी मुनाफरत बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदया, मोहम्मद सलीम जी ने जो कुछ भी कहा है उससे मैं आहत हूं, और मैं समझता हूं इस प्रकार का स्टेटमेंट
यदि कोई गृह मंत्री देता है तो उस गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। मेरा प्रिंट नहीं है। I'll authenticate. I'm sorry. House stands adjourned to meet. फिलहाल अदम रवादारी पर हर बहस का यही अंजाम है। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलेंगे सऊदी अरब, जहां पहली बार खवातीन इंतखाबात में वोटर और उम्मीदवार की हैसियत से शरीक हो रही हैं। और BBC की 100 वुमेन सीरीज में देखेंगे साइबेरिया की एक लड़की की जिंदगी की झलक। ये सब एक मुख्तसर वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज की। सऊदी अरब में आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में ख़वातीन पहली बार न सिर्फ वोट का हक़ इस्तेमाल कर रही हैं, बल्कि इन इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार हिस्सा भी ले रही हैं, जिसे क़दामत पसंद सऊदी माशरे में समाजी इनकलाब से ताबीर किया जा रहा है। BBC की बैनुल-अक़वामी अमूर की नामानिगार लीज़ ड्यूसेट ने रियाज़ में उन ख़वातीन से मुलाकात की जिन्होंने इन इंतखाबात में ख़वातीन के हिस्सा लेने के लिए कैंपेन चलाई थी। इस तब्दीली का आगाज़ चंद बरस कबल शॉपिंग सेंटर से हुआ, जब सऊदी ख़वातीन को पब्लिक में काम करने की इजाज़त मिली। अब ख़वातीन ग्राहकों के लिए ताजिरों को ख़वातीन वर्करों को मुलाजमत देना लाजमी है, जो कि इस क़दामत पसंद मुआशरे में समाजी इनकलाब है। अब ख़वातीन मकामी इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। I just wanted to show you here. This is my weekly column. हाइफा अल हिबावी के शोख रंग वाले कपड़े इस तब्दीली की गवाही दे रहे हैं। But yours is not black. Yeah, no, it shouldn't be black. हाइफा ने सबसे पहले इन तारीखी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया। वो तब्दीली चाहती हैं। आपको पता है कि आप तारीख बनाने जा रही हैं? That's why I'm really sometimes. जी हाँ, बाज़ औक़ात खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तारीख ही बन रही है। सऊदी बादशाहत में इस तरह की तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आती है, लेकिन बैलेट बॉक्स नहीं, बादशाहों के जरिए। इस कैंपेन में हमने मर्द और ख़वातीन दोनों ही को मुखातिब किया है। राशा अल तुर्की इस कैंपेन सेंटर की सरबराह हैं, जो कि ख़वातीन को इन मकामी इंतखाबात में हिस्सा लेने की अहमियत का एहसास दिला रही हैं। ये अभी इब्तदा है, पहला तजुर्बा है ये। हमें अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने और उन्हें कायल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जब लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं वो कम ही पुरजोश होते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के बाद उनका रद्द-ए-अमल इंतहाई मुस्बत हो जाता है। अगर ट्रेनिंग के बाद उनके साथ कोई बल्ब लगा दें तो उनका जज्बा इसे रोशन कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसी नौजवान ख़वातीन भी हैं जो इस तब्दीली को ज़्यादा अहम नहीं समझती। मेरे लिए नताइज ज़्यादा अहम हैं। देखेंगे कि मुंतखब लोगों में कितनी काबिलियत है और वो कितने वादे ईफा करते हैं। फिर अगली बार मैं ज़रूर वोट डालूंगी। सऊदी अरब दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां ख़वातीन का गाड़ी चलाना ममनू है। अभी तक मर्द रिश्तेदार इन ख़वातीन की ज़िंदगियां कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत सी सऊदी ख़वातीन इस पर भी खुश हैं कि कम ही सही, लेकिन उनकी ज़िंदगियां तब्दील होने जा रही हैं। लीज़ ड्यूसेट की रिपोर्ट। और BBC की 100 वुमेन सीरीज़ के सिलसिले में आज हम आपकी मुलाकात साइबेरिया में रहने वाली 22 साला लोबोव रस्कीना से करा रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ बारासिंगे पालने वाले खाना बदोश कबीले से है। उनके कबीले में एक सलीका शुआर लड़की कैसी होती है, आइए इस बारे में उन्हीं से जानते हैं। यहाँ तमाम लड़कियाँ इसी तरह जंगल में रहती हैं। लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती है और अपने घर बार और 12 सींगों की देखभाल शुरू कर देती है। मैं भी यही करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ ज़िंदगी बेहद मसरूफ़ है, कभी कभार तो 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती। हम 12 सींगों की देखभाल करते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं।
میں शाज़ व नादिर ही इंटरनेट का इस्तेमाल करती हूँ। जब मैं छोटी थी तब मैं इंटरनेट पर ज़्यादा वक्त गुजारती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब इसके लिए वक्त नहीं मिलता। कभी कभी एक आध दिन की छुट्टी होती है तो मैं अपने फारिग वक्त में सिलाई कढ़ाई करना पसंद करती हूँ। Мама умерла, когда мне 5 лет было. Бабушка вырастила меня. जब मैं 5 बरस की थी तो मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। मेरी परवरिश मेरी नानी ने की है। मैंने एक बोर्डिंग स्कूल में 7 साल तक तालीम हासिल की। उस वक्त मैं शहर में काम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मुझे मालूम था कि मैं जंगल में ही रहूंगी। स्कूल छोड़ने का मुझे बहुत अफसोस है। मुझे तालीम का सिलसिला जारी रखना चाहिए था। Вот так ловим и кормим. Наши родители знакомы, поэтому. मेरे वालिदैन मेरे शौहर के वालिदैन को जानते थे। उन्होंने हमारी मुलाकात करवाई और फिर हमारी शादी हो गई। Ну, бабушка меня вырастила, она мне рассказывает и. मेरी नानी ने मुझे हमारे रस्म रिवाज के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। मैं दूसरों के रहन सहन देखकर भी बहुत कुछ सीखती हूँ और उससे मुझे मालूम होता है कि अपनी रिवायत के मुताबिक कैसे ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। मेरे ख्याल में एक सुगर लड़की को अच्छी सिलाई कढ़ाई आना बहुत ज़रूरी है। उसे अपनी जिम्मेदारियां खुश असलूबी से निभानी चाहिए, जैसे कि उसे इस बात को यकीनी बनाना है कि घर में पानी और जलाने की लकड़ी है या नहीं, और सिलाई कढ़ाई ये तो बहुत अहम है। अगर हम चाहें तो कभी कभार शहर का चक्कर लगा लेते हैं। हम जितना अरसा चाहें शहर में रह सकते हैं, लेकिन वहाँ रहना मुश्किल है। मुझे तो वहाँ नींद भी नहीं आती। जंगल में रहना हमारी रिवायत है। मेरे लिए जंगल में रहना और अपनी रिवायत को बरकरार रखना बहुत अहम है। और यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि कल 100 वुमेन सीरीज़ के सिलसिले में BBC उर्दू और BBC हिंदी मुआशरे की नज़र में एक अच्छी औरत कौन है, इस पर एक मुश्तरका गूगल हैंगआउट पेश कर रहे हैं, जो आप हमारे Google+ पेज और YouTube चैनल पर लाइव देख सकेंगे। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुँचा। कल फिर हाजिर होंगे। आलिया नाज की को इजाज़त दीजिए।